gentlemen, આપ સૌનું ગુજરાત ટાઇગરની પ્રી-સીઝન પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. I would request to start the press conference. I will address Colonel Arindar Singh to please say a few words. Firstly, a big thank you to all our friends from the media before we start the press conference. I think it is only in order to acknowledge the role that you all have played in help us grow over the last 3 years. And we understand and deeply appreciate you all, not only through the season but through the years ahead as well. I will not stop you from being able to interact with the right people who are sitting on the stage. But only on behalf of GT would I like to say that with the standards that what are expected of us, not only from the IPL but from ourselves as well. I know a lot of you will have questions regarding the best foot forward. Thank you. Thank you, sir. Now I will open the Q&A session. Hello, best of luck to everyone, sir. My question, मेरा भी आपसे ही सवाल था. नया साल और नए प्लेयर्स ऑप्शन होता है और शेपअप टीम कैसे होती है, क्योंकि पास्ट में जिस तरह से फ्रॉम द बिगिनिंग गुजरात टाइटंस ने जो करके दिखाया है, इंक्लूडिंग एलएससी के साथ, दो नई फ्रेंचाइजी आए, बाद में सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया जीटी ने, फिर से होम ग्राउंड है और प्लेयर्स पिकिंग, जो प्लेयर्स गए उसके अलावा जो प्लेयर्स आए, कैसे और किस प्रकार का रोल रहेगा टीम को शेपअप करने के लिए नई सीजन के हिसाब से आपके लिए? नहीं, देखिए आईपीएल में ये कोई नया नहीं है और जैसा आपने कहा कि 3 साल पहले जो शुरुआत थी तब तो अब केवल 3 ही प्लेयर रिटेन कर सकते थे. इस बार हमारे पास 5 प्लेयर थे रिटेन करने के लिए, तो वो पहले से भी और बेहतर है. और जैसा मैंने कहा कि हर साल एक नया सर्कल है और सब प्लेयर्स भी यूज टू हैं कि सबको पता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होने हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट का ये पार्ट एंड पार्सल है, स्पेशली फ्रेंचाइजी क्रिकेट का. They all are used to it. Every 3 years, if not all, at least 60% of them. And we are looking ahead. और we had a great combination. Youngster भी हैं और experience भी हैं. People like Josh Butler, Kagiso Rabada, बहुत सारे experience addition हैं. तो जिस प्रकार की हमने शुरुआत करी थी उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे. आशीष जी, कैप्टन मिस्टर गिल, फॉरेस्ट लिया गया है वो बैट्समैन की पर्सपेक्टिव से लिए गए या विकेट कीपर? नंबर 2, आपने जो बॉलर लिए उसमें भारत के ज्यादा बॉलर है, तो कंडीशन के ध्यान से आपने चुने हुए हैं? सर, फर्स्टली तो जी जॉस बटलर को एज अ विकेट कीपर लिया गया है और इंडियन फास्ट बॉलर्स, इंडियन प्लेयर लीडर सर इंडियन फास्ट बॉलर तो होंगे, इसमें जाहिर सी बात है. Look at our record over the past 3 years, we are the team with the most wins and the highest percentage of wins. So if we continue to do that, it's going to be another great season for us. And just because it's a new season, I don't think we have to do anything different. I think over the past 3 years, we have played the most consistent cricket. And the wins and the matches, it speaks for itself. And I don't think we need to change anything. We will continue to keep playing the cricket that we have been playing over the past 3 years. India is on the threshold of changing guards by 2027 World Cup. It's like handing over the baton in a 4x400 meters Olympics. So at the right time, you are at the right juncture because you have played under the great captains Virat Kohli. So definitely, I think I've had more experience captaining Gujarat than the Indian cricket team for sure, and the experience that I have there, the experience that I get here from Ashu Paji or Vikram Paji is immensely treasurable for me. And like you said, I've played under various captains and each captain has a different quality, and there are some qualities that resonate with you as a person, and those are the kind of qualities that you tend to take forward, and that is what I'll try to do. Time, so I think we have got some real experience in this. Thank you. Ma'am from Doordarshan, please. I'm Neha Dev from ET News. Shubham, I have a question for you because of this fresh squad with the Butler and Siraj. Recently, there was a statement that you made that the 300 is not a dream too far in IPL, and there are many teams which have come very close to 300 run.
So, what do you have to say about it? And also another question for Karan Saab. There is this partnership with Pokemon. You have to say something about it. Firstly, I don't think as a team we are trying to chase 300 as a total. That's not what our aim is. We want to play the kind of cricket we will assess what the condition is and what the situation is, and we want to play that kind of cricket. If the wicket or the situation allows us to make 240, 250, 260 runs, yeah, we are not saying no to that. But there might be a situation where 150, 160 would be an ideal total on a wicket. And hence, I feel as a team, if you are only looking to play one way, then you are not adapting the things how you should. And a great team, the hallmark of a great team is that it adapts the best to the suitable conditions and the challenges that are thrown at them. Yes, sir. Yeah, and let me tell you about Pokemon. It all started with, I don't know whether you are aware that we run a program for children called the Junior Titans. We had the second edition of the Junior Titans this year. Seeing what we did last year, that's in 24, Pokemon got in touch with us and they wanted to become a part of that, which of course we very willingly made them part of this year. And then it is going to extend further into our home games here at our stadium, where you will see more of Pikachu in the fan zones that we create for all the fans of GT. So it is a good association, it's going to continue, and it will be good to see Pikachu in GT colors very soon in our stadium. सर प्लानिंग तो ये रहती है कि आप आखिरी में जितने ज़्यादा रन बना सकें और जितनी कम विकेट हो सके. आई थिंक टीम की हमारी जो पिछले साल परफॉर्मेंस थी इतनी अच्छी नहीं थी, और वो चाहे पार्क ले लो या उसके बाद ले लो, उस चीज़ ने दर्शाती है वो चीज़ की अगर हम जिस तरीके से पार्क में खेलना चाहते थे और उसके बाद जैसे खेलना चाहते थे, अगर हम उतने मैच नहीं जीत पाए या क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये जाहिर सी बात है कि हम जो गेम के फेजेस होते हैं वहाँ पे हम उतना अच्छा नहीं खेले. तो एज अ बैट्समैन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम पावर प्ले में जाए और जितना पावर प्ले को हम अच्छे से खेल सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं वही करने की कोशिश रहती है. और आई थिंक इस बार होपफुली जो चीज़ें हम पिछले साल नहीं कर सके उसको बेहतर करने की कोशिश करें. नई टीम बनती है ना, जैसे अगर आपने मोहम्मद शामी की बात करी, नाउ ये पीपल लाइक Kagiso Rabada, Mohammad Siraj, whenever they have played for the other franchises with that much experience, now is their thing, they will do the same thing. And as when you talking about Noor, so early the same question, taking the conversation forward, we have people like Washington Sundar, Sai Kishore, Rashid Khan, so we have enough spin battery also. Yes, you definitely miss the skill set of Mohammad Shami and Noor Ahmed, and that's what IPL is. Every 3 years there will be new guys coming in and they have to do that role. Coach, can I request you? तो पहला मैच आई थिंक पंजाब के खिलाफ था. तो सर ऐसा कैप्टनसी और बैटिंग को जितना ज़्यादा हम सेपरेटली रखें उतना ज़्यादा बेहतर होता है. उसको मेरे एक्सपीरियंस से तो ये है कि अगर मैं उसको मिक्स ना करूँ, क्योंकि बैटिंग अगर मैं जब बैटिंग करने जा रहा हूँ तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि मैं एज अ बैट्समैन खेलूँ वहाँ पे, और जो मैं डिसीजन एज अ बैट्समैन वहाँ पे लेता हूँ वो सबसे मेरे लिए सबसे बेहतर डिसीजन या अच्छे डिसीजन वही होते हैं कि मैं एज अ बैट्समैन डिसीजन को बैटिंग करते हुए. कैप्टनसी का रोल जब हम या बैटिंग करके मैं आउट हो चुका हूँ तब, या फिर हम फील्डिंग जब कर रहे हैं उस समय पे या ऑफ द फील्ड उस समय पे ज़्यादा उस चीज़ का रोल रहता है. बैटिंग करते हुए जितना मैं अपने आप को एज अ बैट्समैन की तरह वहाँ पे बैटिंग करूँ तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा. मेरे लिए जैसे पहला साल था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली, और आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग चीज़ कैप्टनसी की यही रहती है कि हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है किसी प्लेयर के बारे में या फिर अपने बारे में. तो वो सब चीज़ें हैं जो मुझे सीखने को मिली अपने बारे में और प्लेयर्स के बारे में, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे अपने ऊपर अगर मुझे एक अच्छा कैप्टन बनना है काम करने की ज़रूरत है. और होम एडवांटेज तो आई थिंक सर रहता है, ये टीम जो भी फ्रेंचाइजी टीम बनाती है वो उनकी जो कंडीशंस हैं, घर की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से वो अपनी टीम बनाती हैं. बट अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखें सर 2023 में हम आई थिंक जितना अच्छा हमने होम में परफॉर्म किया उतना ही अच्छा हमने अवे में भी परफॉर्म किया था. तो अवे में भी परफॉर्म करना उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही ज़रूरी होता है जितना होम में परफॉर्म करना ज़रूरी होता है. और फैंस का सपोर्ट तो लकीली हमको सबसे बड़ा स्टेडियम है सर दुनिया में, तो
फैंस का सपोर्ट तो हमेशा बकिंगम की स्टेडियम में खेल रहे हैं और हमको बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है उनका हर साल। Thank you. Please, sir. मेरा भी लास्ट क्वेश्चन since that two question है उनमें 3 अलग-अलग क्वालिटी ट्रैजेक्टरीज होती है, या तो फास्ट होता है या तो ऑन द राइज करता है, बट दोनों और स्विंग करता हो, राइज भी होता है और 140 km प्लस वो डालता हो और ऊपर से उसकी लाइन और लेंथ डिसेप्टिव होती है। पिछले 20 साल में हमने 3-4 ऐसे बॉलर देखे, टू स्टार्ट विद ज़हीर खान, इरफान पठान एंड नाउ अशदीप सिंह। इरफान पठान और ज़हीर खान वो दोनों की एक अलग लाइन और लेंथ, पेस और वो था, बट आप में जो था, इफ वी रिकॉल 2003 वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, योर स्पेल 6 विकेट्स, अर्शदीप सिंह में वो एक झलक थी। सर पहले तो जहाँ से आपने जो 4 नाम लिए हैं इनका तो पता नहीं, किसी के भी मैंने आज तक नहीं देखी, इंक्लूडिंग वसीम भाई, क्योंकि उनके बाद भी आपने तो बाउंस भी ऐड कर दिया ना। तो यहाँ की बात नहीं बिल्कुल देखिए, मिचेल जॉनसन, हाँ जी बिल्कुल। नहीं हरदीप सिंह की बात आप करें, हमने तो खेल लिया जो खेल लिया, हमारा हो गया काम। और हरदीप सिंह जिस तरीके की गेंदबाज है, जो फास्ट बॉलिंग के लिए आपको सबसे मैं कहूँगा सबसे पहली जो रेमेडी है, जो सबसे ज़रूरत है वो है हार्ड वर्क। कि 60, 70, 80% तो आप जिसकी बॉडी होगी, और वहाँ पर हरदीप सिंह मैं कहूँगा कि 10 में से 110 नंबर। तो इसलिए जिस तरीके से वो भी गेंदबाजी कर रहे हैं, और यहाँ से आप विद एक्सपीरियंस उनको बेहतर ही देखेंगे। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी उनकी फिटनेस है, जिस तरीके की है, उनके वर्क एथिक्स हैं, कि हू नोज कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी आपको गेंदबाजी करते देखें। तेईस ऐसी चाहिए जो हमारे पास है, और इससे पहले भी जो रही है। लास्ट ईयर कुछ इंजरीज हुई, मोहम्मद शामी नहीं थे, हार्दिक पांड्या नहीं थे, जिसके चलते थोड़ा फर्क जरूर पड़ा। तो ज़्यादा हमें कुछ ऐसे प्लानिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले सालों से जिस तरीके से खेलते आए हैं, उसी तरीके से आगे खेलते हुए बढ़े। Thank you so much. Can you come आगे इधर आओ सर। This side. चलो भाई, डन।